Now, what we are going to do today is first we're going to have a recap of what we had done yesterday, and if there are any doubts, I am right now there on two different screens. So if you have any doubts, you can post it on the chat window. You can unmute if you can, or whatever you want to do. You can just mention it out here. So I'm going to just quickly go through whatever I have done, what I had done yesterday. हमने कल क्या क्या किया था? हमने कल बेसिक व्यू दिया था, देखा था. So basic view was what, that you have rows and columns here, and you have all the tables that are there. Remember, anything above this particular line is called as dimension, anything below this line is called as measure. Dimensions are things which are categorical in nature, measures are things which are numerical in nature, or something which can be added, subtracted and worked around. So वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं. Then this is a way, let me just mute this particular noise. This is can one of the co-hosts please mute this this noise that is coming? It kind of disturbs. Yes. So the chime of people entering into the waiting room, just mute this. Now coming to the issue, what we were discussing, and my screen is shared, right? Yes. So all of you can see my screen, right? Yes, no chat window, guys. Is chat option available to all of you? My screen is no. Oops, why is that the case? Why is my screen not visible to all of you? Just check, guys, if this is I hope now it is available. Okay, great. So what we were doing is we were trying to see the various ways through which we can have a look at the data. अब उसके अंदर हमने क्या देखा था? We had put these dimensions are things which you cannot add, subtract and then work around, slice and dice. These are all categorical basically data. And then you have measures, which is basically something that you can slice and dice and do a lot of work around with. और इसके अंदर we have made a pivot table. I told you कि what these functions are, and with time when you will explore, you will get to know more things. What I have typically done in this particular case is कि मैंने सब category, हमारे पास category सब category है, और and then I've just put in numbers here in text. So this was one view. Then the second view that we saw was that suppose you want to see another factor, you want to see profits and you want to see sales. So you have to have two dimensions, profits और sales दोनों एक साथ देखने हैं आपको, and in a graph. So you can put it on the marks card, you can put it on the colors, and then you can change this around. Then typically what you will see is that the automatic, this is something that I'm telling you now, the automatic color selection that Tableau does is a color blind friendly selection. So in especially in US, you would observe that 1 out of 10 people is color blind. Therefore the kind of palettes that are chosen by Tableau are usually the color blind palettes, but in our case we can always shift and change these color palettes, जिसका यूज आज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे color palettes का. Then हमने sort and label भी देखा कि हम इसको sort and label कर सकते हैं.
and you can sort it in the ascending order, you can sort it in the descending order, whichever way you want, you can do it. Then हमने next bar graphs देखे. Bar graphs and in terms of different colors as well. We saw this. Then we saw text table. You can use text and size of text. You can use it in terms of circles as well. Then हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जो हम आज भी देखेंगे, लाइन ग्राफ. एंड लाइन ग्राफ के साथ में आप एक ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकते हो. यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट ऐड ट्रेंड लाइन. आप ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकते हो जहाँ पर you have time as one variable and the other is a quantity. So in this case you have a trend that is there, and then you have bar, same चीज़ को आप bar dates के अंदर भी you can see. एंड देन सीजनैलिटी के केस में हमने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके भी सॉ की सीजनैलिटी आप देख सकते हो किस सीज़न के अंदर आपका कम हो रहा है, कौन से सीज़न में आपके ऊपर ज़्यादा चल रहा है. तो डिस्क्रीट नंबर्स, रिमेंबर यहाँ पर हमने कहा था कि इसको मंथ को आप डिस्क्रीट वे में भी देख सकते हो. जैसे अगर आप इस वाली पेन के ऊपर देख रहे हो तो ये सारे डिस्क्रीट है, और इस पेन के नीचे देख रहे हो तो ये सारे कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं. देन टू वेरिएबल्स को प्लॉट करते हुए वी कैन ऑलवेज सी अ स्कैटर प्लॉट. टू क्या कहते हैं मेजर्स को अगर आपको एक साथ देखना है, द बेस्ट वे टू सी इज अ स्कैटर प्लॉट. एंड स्कैटर विद ट्रेंड देख सकते हो. यू कैन ऐड अ ट्रेंड लाइन टू दिस, एंड यू कैन ऐड कलर आई मीन टू दिस, एंड देन सी अलग अलग कैटेगरीज के लिए कैसा स्कैटर बन रहा है. Then I told you a pie chart. Pie chart में I told you कि pie chart जो है it's not very fun, especially because of the fact कि it is part of a whole, and not just it is a part of a whole. The other problem with pie charts is that I mean you don't really, it's not very intuitive कि अगर बहुत सारा पास में है तो कितना डिग्री का आपका एंगल है. So they're not actually fun in terms of interpretation. Then we saw tree charts, and then we saw tree charts के अंदर we went into a little more detail and added some color to it, and saw कि अच्छा tree charts के अंदर what can we see. And then we further drove down this particular point, and then for a very granular point कि अच्छा किस product के अंदर आपको वो मिल रहा है, actually में profit और loss मिल रहा है. And we compared these tree charts using a dashboard. Then I also showed you bubble charts. The same thing can be done with bubble charts. Bubble is also a kind of a comparison that you can do, but in a different method, for which you had created a natural hierarchy, and उस natural hierarchy को use करके you were creating this bubble. Then we saw these bins. We then saw some kind of comparison of bins, and then we saw a box plot. Again, it tells you about outliers. I had not discussed this Gantt chart with you. Maybe if I get time in the end, I will discuss Gantt and funnels with you. There are a lot of other not a lot of, but there are a few kind of charts that I have not covered, and you need to see where to use which particular chart. But see, right now I am dealing with a generic data which is available on the public platform of Tableau as well. But you need to know how to apply this to economic data. Most of you are economic students now, and I told you that I am interested in doing this for economics data. I have the data, and if any of you is interested in the summer vacations, then some kind of work can be done around this, so that we can come up with some kind of a automated Tableau based Tableau based infographics for representing the entire country in terms of dashboards. So I would love to work with people who are trying their hands at Tableau and getting their hands dirty, and ऐसे सीखने से नहीं होगा जब तक आप you get into this and then you solve and you pick it out and then you solve it, then only you will get this particular thing. Then we saw a geo tag data as well, and lastly I told you कि show me से भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. यहाँ पर आपके पास show me आ जाता है. Any doubts that you might have from previous session, please let me know. क्योंकि आज हम डैशबोर्ड्स के ऊपर जाएंगे, डैशबोर्ड, स्टोरी, and we'll do all that stuff.
So let's move to another file then. Yeah, today I'll go a little slow because there is going to be a lot of complications that we are going to have when we are going to discuss this particular topic. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें होंगी जो हो सकता है कि नई सी लगे. Now for this part of this session I have shared one data source with you. I hope you have sample stores का Excel, and if you want to check your answers there's a Superstore dashboard that is there. A TWB file is basically a Tableau workbook. ठीक है, the TWB basically stands for workbook. So we are going to start with a Tableau workbook. All of you have this file, sample stores. सबके पास है sample stores? Control function. Which control function? Tanisha? Can you outline कौन सा control function? Oh, 2 dimension. अच्छा देखो suppose now guys see this, we are going to use this in the end also. Now यहाँ पर हमारे पास ये जो है if you see 3 into 8 या 24 different kinds of charts आपके पास यहाँ पर given है. इनके ऊपर अगर आप होवर करोगे तो वो आपको अपने आप ही बता देगा कि वो कैसे कैसे चार्ट्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू मेक अ लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट ये देखो लिखा लाइन चार्ट फॉर डिस्क्रीट एंड देन लाइन चार्ट कॉन्टिन्यूस. तो वो कह रहा है कि एक तो मुझे डेट चाहिए और दूसरा मुझे एक मेजर चाहिए, डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो वो कह रहा है कि मुझे एक डेट वाली आइटम, फॉर डेट वाली आइटम हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो हमारे पास डेट वाली है से शिप डेट ले लेते हैं, और हमारे पास दूसरा क्या है, और हमारे पास है सेल्स. ठीक है, तो हमने कहा कि सेल्स ले लेते हैं. तो कंट्रोल प्रेस कर, अभी जब ये करा तो ये वाला प्रेस्ड है, अब कंट्रोल प्रेस करो एंड सेल्स करो. द मोमेंट दैट यू प्रेस दीज टू, ये दोनों ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए. एंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक आपके पास ऑलरेडी जो रेड में आ गया वो तो प्रेफर्ड है, दैट इज व्हाट टैब्लू इज सजेस्टिंग यू. बट इफ यू वांट टू चूज दिस यू कैन चूज दिस एज वेल. यू क्लिक दिस, यू गेट दिस कॉन्टिन्यूस, एंड इसको ऐड करोगे, ये करोगे तो आपके पास ये इस तरीके से आ गया. इसको और करोगे, इसको इस तरीके से आ गया. दिस इज बिकॉज दिस इज अ कॉन्टिन्यूस वन. ऑलराइट, ओके गाइस. ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर फाइल. ऑल ऑफ यू हैव दिस फाइल सुपरस्टोर्स वाली जो है, नॉट ट्रेडर सोर्स, द अदर फाइल दैट इज देयर. Sample superstores. All of you have this file, guys? Yes, no, yes, no, yes, no. Come on. Okay. So see what you need to do. Go to file, and we are going to open a new project. Wait for it. My system is extremely cramped. हो सकता है आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा. Yes, so Tableau book, you got this. Now what you do is connect, जैसे हमने कल देखा था, connect to a new data source. जैसे आप कनेक्ट बोलोगे तो वो कहेगा किससे कनेक्ट करना है आपको. तो अब हम कह रहे हैं कि एक्सेल से कनेक्ट करना है, एंड एक्सेल में यहाँ पर सैम्पल सुपरस्टोर करके जो डेटा है, जस्ट क्लिक ओपन. एंड बाय द वे इफ यू वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, डैशबोर्ड्स अगर आपको ट्राई करने हैं और आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी है, सो यू कैन आई मीन आपको बहुत सारी चीज़ें जो है गिटहब पे भी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे करने को. सो यू कैन गो टू गिटहब एंड ट्राई इट आउट. अब नाउ व्हेन यू सी सैम्पल स्टोर, तो आपको दिखता है कि यहाँ पर 3 शीट्स हैं. नाउ आई एम नॉट
dealt with different sheets, how to arrange different sheets, but अभी simple, अभी हमें order sheet जो है वो important है, तो order sheet को drag करके आप right hand side पे यहाँ ले आओ, ठीक है। जैसे आप order sheet को right hand side पे लेके आओगे, again you will get this super view of the entire thing. You will get rows, कौन कौन सी हैं, orders कौन कौन से हैं, ये सारी information आपको मिलेगी। And instead of live do an extract इसीलिए because extract से क्या होता है कि आपका rendering time कई बार कम हो जाता है। And then you go to worksheet, वो वर्कशीट पे जाएगा तो आपको एक बार वो सेव करने के लिए बोलेगा कि आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो। मैं इसको 2 करके यहाँ पर इसकी रिपोजिटरी में डाल देता हूँ। वो बेसिकली आपका एक्सट्रैक्टेड डेटा को भी सेव करना चाहता है एक जगह पर, क्योंकि यू आर मेकिंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन एक्सेल फाइल, ठीक है। तो उसका एक स्नैपशॉट लेके सेव कर रहा है वो। नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। लेट अस मिनिमाइज दिस, लेट अस हैव द फर्स्ट फाइल, ठीक है। एंड I'll now tell you कि what we are trying to build. यहाँ तक सबका हो गया? All of you have reached this level. अगर आप by the way लाइव कर रहे होते तो लाइव के केस में वो क्या कहते हैं, वो एक्सट्रैक्ट सेव करने के लिए नहीं होता, ठीक है। Now by the way, even if you missed yesterday's session, you will be able to learn today. Yesterday was just laying down the bricks. Today we are doing the real stuff. Now सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब I'll tell you what I'm trying to actually make, ठीक है। Let me show you here what I'm trying to do. Now see, what I'm trying to do is I am trying to make a dashboard, और वो dashboard कैसा बनाना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए एक के बाद एक मुझे कुछ व्यूज़ चाहिए, और वो व्यूज़ अल्टीमेटली एक स्टोरी बना के देंगे, ठीक है। तो मुझे डैशबोर्ड कैसा बनता है, डैशबोर्ड अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ से बनता है। तो जैसा हमने कल 2-3 व्यूज़ बनाए थे, उनके बाद उनको ऐड कर दिया था एक बोर्ड में। तो हम क्या बना रहे हैं, हमारे पास बेसिकली इफ़ यू सी दिस सैम्पल स्टोर, तो बेसिकली एक स्टोर का डेटा है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का सेम तरीके का डेटा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यू नीड टू प्लान दिस, कि आपको कैसे प्लान करना पड़ेगा कि अच्छा मेरी सारे के सारे जो एंड में जो मेरा डैशबोर्ड आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहले सेल्स का डेटा है, ठीक है। मैं सेल्स के डेटा के साथ में विद सेल्स डेटा आई एम गोइंग टू सी दी सब कैटेगरी, ठीक है। सेल्स एंड सब कैटेगरी का मैं डेटा देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं साथ में क्या देखना चाहता हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दिस डेटा, मैं एक और व्यू लेना चाहता हूँ जिसमें सेल्स भी होंगी प्लस सब कैटेगरी भी होगी, ठीक है। और साथ में व्हाट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी इज प्रॉफिट, आई वॉन्ट टू सी कि प्रॉफिट कैसा आ रहा है, तो मुझे प्रॉफिट वाला भी चाहिए। फिर उसके बाद once I do this, I also need some kind of I also want a profit trend chart. मैं कहता हूँ कि मुझे एक ट्रेंड चार्ट भी चाहिए, एक सेल्स का, और मुझे प्रॉफिट का ट्रेंड चाहिए। I also want to see trend. Today I'll also show you कि इसके अंदर फोरकास्टिंग भी देख सकते हो, ठीक है, बेसिक फोरकास्टिंग। प्रॉफिट ट्रेंड चाहिए, और फिर इन सब को यूज़ करके साथ में मुझे एक और व्यू क्या चाहिए, मुझे एक व्यू, मैं आपको सारे व्यूज़ बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे व्यूज़ मैं यूज़ करूँगा। फिर मैं एक मैप का व्यू लूँगा, ठीक है, यूएस का इस तरीके से मैप लूँगा मैं, एंड मैप के अंदर मैं कुछ मार्किंग करना चाहता हूँ, कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट आई नीड, एंड ऐसे ही सिटी का भी मैप लेना चाहता हूँ। तो मैं ये बहुत सारे व्यूज़ बनाऊँगा, एंड फाइनली आई विल मेक अ डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड किस तरीके से बनेगा, एक डैशबोर्ड बनेगा जिसके अंदर हमारे पास सेल्स, प्रॉफिट, सब कैटेगरी के वाइज हमारे पास डेटा होगा, एंड हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर लाइन चार्ट्स हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास बार चार्ट्स हो सकता है, एंड वी कैन ऑल्सो हैव अनदर डैशबोर्ड वेयर यू हैव द सेम थिंग बट नीचे मैप्स हो जाएगा।
नीचे मैप्स हो जाएगा, यहाँ पर भी मैप हो जाएगा, यहाँ पर मैप हो जाएगा, मैप सिटी वाला हो, स्टेट वाला और ये सिटी वाला। सो दिस इज हाउ वी वांट टू बिल्ड आवर व्यूज। तो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपके डैशबोर्ड में चाहिए। नाउ लेट अस ट्राई टू बिल्ड दिस। अब इसके लिए ग्राफ 1 के लिए आप क्या करोगे? नाउ लेट अस चलो नेम बाद में करते हैं। लेट अस पुट सब कैटेगरी को उठाओ एंड पुट इट इनटू रोज। तो आपके पास आ गया कि यही आपके पास सब कैटेगरी जो कल भी थी, एंड यू कैन पुट सेल्स एंड पुट इट इनटू कॉलम, एंड ऑल यू कैन डू इज डिसेंडिंग आप इसको कर दो एंड इसके आगे आप लेबल्स लगा दो। सो लेबल्स लगाते के साथ ही आपके पास ये नंबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। So you got the basic idea, the basic graph of sales and subcategory. You can, and हर बार जब भी आप कोई नई शीट बनाओगे उसको आपको रीनेम ज़रूर करना है, क्योंकि एंड में नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। सो वी रीनेम दिस एज सेल्स मिक्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चार्ट। दिस इज द फर्स्ट चार्ट डन। Shouldn't take you much time. Yes, no, guys. Yes, no, yes, no. Okay. फिर हम एक और शीट लेते हैं। अब इसको शीट लेने की बजाय मैं क्या कर सकता था, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने डुप्लीकेट कर दिया। नाउ टेल मी कि मुझे इसके अंदर प्रॉफिट्स भी देखना है। व्हाट शुड आई डू? थिंक अबाउट इट। वी हैव सेल्स एंड सब कैटेगरी, बट आई वांट टू सी प्रॉफिट्स एज वेल इन दिस। व्हाट शुड आई डू? क्या करूं कि प्रॉफिट्स भी आ जाए? सोचो, कल हमने क्या किया था ऐसा कि मुझे 2 मेजर्स मिल जाएं और एक डायमेंशन है। ब्यूटीफुल। प्रॉफिट्स को उठाया और उसको कलर टैब पे डाल दिया। नाउ एज आई टोल्ड यू, द डिफॉल्ट color theme that Tableau picks up is a color blind friendly thing, but we would like to change this। पहले तो इस डेटा को देखते हैं। तो इस डेटा में हमें दिखता है कि जितना डार्क ब्लू होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, जितना ऑरेंज होगा उतना लॉस है। टिपिकली जब हम लॉस देखते हैं तो हमें रेड में दिखना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए तो हमें ग्रीन में दिखना चाहिए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू चेंज द कलर पैलेट टुडे। ठीक है, कलर पैलेट, और फिर वो कलर पैलेट की ना कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आपकी एक जगह पे कलर पैलेट कुछ चल रहा है, दूसरी जगह पे कलर पैलेट कुछ चल रहा है। रेड शुड ऑलवेज मीन लॉस एंड ग्रीन शुड ऑलवेज मीन प्रॉफिट। So we need to do this, but what we can see from this particular data is that tables is a very peculiar thing. Tables gives you the third largest sales, but at the same point of time it is one of the highest loss making subcategory for you. So we are going to see and in fact बाकी सारे सब चीज़ों का भी एनालिसिस करेंगे, but सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर पैलेट चेंज करते हैं। तो if you click on this arrow, do edit colors, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक की जगह पर यू गो टू रेड ग्रीन डाइवर्जिंग, एंड रेड ग्रीन डाइवर्जिंग के अंदर भी आपको एक और चीज़ देखनी है। इसमें एडवांस में जाके मेक श्योर दैट द सेंटर इज मार्क्ड एज 0, कि 0 के ऊपर होगा तो नो कलर एंड बेसिकली वाइट कलर, एंड वहाँ से 0 से डाइवर्जेंस शुरू होगा आपका, एंड जस्ट अप्लाई एंड ओके। कैन यू सी द कलर्स हैव ऑल चेंज्ड, and we rename this as, we can then rename this as sales and profit sales and profit mix, sales and profit mix there। ठीक है, done guys, get this done।
also at 7:10 I'll give you a 5-minute break, guys. I'm not used to taking 2 hour lectures. Okay, great. Now let's move to another sheet. अब हम चाहते हैं, हमने लेट्स गो बैक कि हम क्या कह रहे थे. हमने अलग अलग व्यूज़ चाहिए थे. हमने ये वाला कर दिया, हमने ये वाला कर दिया. अब हम प्रॉफिट का ट्रेंड देखना चाहते हैं. दिस इज़ अनदर व्यू दैट वी वांट. नाउ लेट्स गो टू दिस व्यू. गाइस हियर मी? Yes, apologies folks, when you have an old system with too many softwares running, this is bound to happen. Alright, now remember what we are going to do now. We are going to make a chart of profit trends. Now profit trends अगर होगा तो profit trends तो it has to be profit trends, it has to be on basically some kind of a date. So let's put order date to columns and we will put profit to rows. So we got some kind of this thing, and we will also add, what we will also do is what we will do is we will take a monthly continuous one. ठीक है. What I have done is मैंने यहाँ पर ऊपर जाके इसको, remember these are discrete and these are continuous. I mean I've just taken month. What you can also do is, if you want to save your time, you can pick up order date. यहाँ पर show me में जाओ and order date पे click करो, कंट्रोल दबा के प्रॉफिट पे क्लिक करो एंड यहाँ पर continuous वाला लाइन ले आओ. ये अपने आप ही हो जाएगा. But what you want is कि you don't want this on an year basis, we want this on a monthly basis. तो हमारे पास ये monthly वाली फाइल आ गई, continuous monthly थे. And now you want to see, remember we want to see profit and loss. These are I mean the moment that we have losses, we also want to show it in a color. So what we can do is, जैसे आपको ये कलर वगैरह उसमें चाहिए तो you can put it the profit onto colors tab. And to maintain that consistency, देखो अभी वो again yellow हो रहा है, but we cannot have that inconsistency. Edit the colors, pick out red and green diverging, and center as 0. Apply this and okay. And if you want to add a trend line, you can always just right click on any white surface area and also add a trend line to this, which will also tell you ki what is the trend in terms of your sales. And then rename this as, say, profit trend. Please do this, profit trend. Done, guys? All I've done is profits and simultaneously months, continuous month, and color palette change किया है. By now you should know how to change color palette, and I've just added a trend line to this. Alright, good. Then let us do another thing. अब एक और, अब इसी को मैं duplicate करता हूँ. Just duplicate this, and instead of using this trend line, let's say बार हमने कर दिया, ठीक है, and trend line को हटा दो. ठीक है, this is the same diagram
बट इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ आई विल टेल यू कि वेयर इट विल बी यूजफुल. कई जगहों पे आपको ट्रेंड लाइन यूजफुल होगी, कई जगहों पे आपको ये यूजफुल होगा. So and just rename this as these are profit values. वहाँ पर values नहीं मिल रही, वहाँ पर आपको trends मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से values मिल जाएंगी. Even if you add these numbers to this, so you kind of get these proper values to these graphs. Then and rename this as profit, say values. प्रॉफिट वैल्यूज. अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई. नेक्स्ट अब हम अपना नेक्स्ट व्यू बनाएंगे. नेक्स्ट व्यू किस चीज़ का बनाएंगे? हमें प्रॉफिट अक्रॉस स्टेट्स चाहिए. ठीक है. एंड द शॉर्टकट इज से प्रॉफिट लिया. ठीक है, पहले तो यहाँ शो मी करा, शो मी लिया, प्रॉफिट सेलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया एंड आई हैव कनेक्टेड स्टेट्स. ये दोनों हो गए, ब्लू और ग्रीन हो गए आपके. ये देखो यहाँ पर उसने बोल दिया ना कि मुझे एक डायमेंशन चाहिए था और वो भी क्या कहते हैं ये वाला जियो स्पेशल, और एक मेजर चाहिए था, तो उसको मेजर भी मिल गया, ये भी मिल गया. अब ऑल यू नीड टू डू इज गो फॉर अ ये वाला फील्ड मैप. तो ये वाला मैप क्लिक करोगे, यू विल गेट layout, which is like this. Now can someone tell me the issue in this particular graph? Can someone tell me the issue in this particular graph? Hint, consistency. Absolutely. कलर पैलेट पे जाओ, सेम चीज़ करो, अगेन गो फॉर दिस, गो फॉर रेड ग्रीन डाइवर्जिंग, एडवांस में जाके सेट द सेंटर एज 0. ओके, हमारा कलर पैलेट रेडी है. ठीक है. सो यू हैव द नेक्स्ट ग्राफ. अब इसमें जो है प्रॉफिट जो है कैन नॉट बी शोन, profit cannot be shown on as basically your अच्छा प्रॉफिट कर अभी वो दिखाता हूँ. बट प्रॉफिट कभी भी ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस जैसी कोई भी चीज़ नेगेटिव में जारी होगी ना, तो उसको कभी साइज में मत डालना. द मोमेंट यू पुट प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट टू साइज, तो क्या है, कोई चीज़ नेगेटिव एरिया नहीं हो सकता. So make sure whenever you're using stuff, so you use it in a proper way. Now I'll tell you where it will be used. So isko up you can use profit across states. You can probably write this, isko rename kar do, profit across states. Today I'll give you a lot of data sets as well in the end. Up apna just try those on these data sets. If you have any doubts, you can always reach out to me, and we can then solve that problem. Now अब हम एक और ग्राफ बनाते हैं. अब इसमें क्या है, that we will take up cities and we will pick up profit. तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, पहले शो में दबाता हूँ, प्रॉफिट, कंट्रोल, फाइंड सिटी and then go for this map. See, you will get an error here. I will tell you what is the error. अभी हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे, बट इफ यू सी आपके पास 353 अननोन्स भी आए हैं. क्लिक ऑन दिस अननोन्स एंड देन गो टू एडिट लोकेशंस. एडिट लोकेशन करके वो यहाँ पर उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कौन सी सिटी है, तो यहाँ पर नन की जगह पे, स्टेट एंड प्रोविंस नन की जगह पे फ्रॉम फील्ड कर दो. वो ऑटोमेटिकली डेटा को सेलेक्ट कर लेगा कि कहाँ से है. उसने अब मैप करना शुरू कर दिया कौन सी चीज़ क्या है, एंड देन जस्ट डू ओके. यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स एज वेल. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द इशू हेयर? What do you think is the issue here?
When you see something like this and then tell कि कुछ issue है, क्या issue है सोचो. प्रॉफिट को आप, मैंने आपको बताया प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट को इस सर्कल के साइज से तो नहीं कर सकते. सो पिकअप दिस, यहाँ पर देखो ये साइज में गया हुआ है, पिकअप दिस एंड ड्रैग इट टू द कलर पैलेट. एंड आफ्टर यू हैव ड्रैग्ड इट टू द कलर पैलेट, अगेन चेंज द कलर पैलेट टू द सेम थिंग दैट वी हैव. We have the diverging red color diverging, and you have center as 0, and now you have these beautiful this thing file ready with you. ठीक है. Now you can also create filter on this profit को. आप क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, profit को आप filter पे लेके चले जाओ and click on all. Next and wait. Range of values. Okay. Filter. Okay. ठीक है. अभी we'll work on this profit वाला चीज भी. Let me just check where is my original file. Give me a second, guys. I don't think I've used a filter somewhere. ठीक है. Let it be. Just rename this as profit across city. Profit across city. Please complete till this point. Once you have all these systems ready, we are ready to build an interactive dashboard. And you can always click on these points, by the way. यहाँ तक हो गया, done. Now for dashboards, remember यहाँ पर ये dashboard है, यहाँ से भी आप dashboard कर सकते हो, न्यू dashboard, नीचे से भी dashboard ले जा सकते हो. बट डैशबोर्ड आते के साथ ही, नाउ टुडे आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग्स लेटर ऑन. एक आपको ये फ्लोटिंग और टाइल्ड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और दूसरी चीज़, आई थिंक आई टोल्ड यू येस्टरडे कि जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो आई डोंट वांट फिक्स साइज, आई वांट ऑटोमेटिक साइज, सो दैट इट स्प्रेड्स अक्रॉस ऑल माय द इंटायर ऑफ माय सिस्टम. नाउ व्हाट आई वांट इज दैट आई वांट टू चार्ट्स. रिमेंबर द present that I had showed you. I want my sales and profit and your subcategories, and here I wanted certain things. यहाँ पर मुझे line chart चाहिए था, यहाँ पर मुझे bar chart चाहिए था. So what I'll do is, मेरे पास ये sales profit mix का chart है, ये इसको मैंने drag करके यहाँ ले आया, ठीक है. अब आई ऑलरेडी नो कि ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉफिट जो है वो ये लेजेंड यही है, तो ये आप इसको आप पूरा कट कर सकते हो और यू कैन रिमूव दिस फ्रॉम योर डैशबोर्ड. So I've just removed that legend that was there, ठीक है, and I have my first graph ready on the top. अब what I want to do is, मैं नीचे भी ग्राफ डालना चाहता हूँ,
तो मैंने क्या करा, मैंने प्रॉफिट और ट्रेंड को लेके आया और मैंने उसको, सी यू कैन डू इट इन मल्टीपल प्लेसेस, ये आपको बता रहा है, आई हैव नॉट ड्रॉप्ड इट, आई एम जस्ट कीपिंग माई माउस स्टेडी, बट मैं उसको कह रहा हूँ कि नीचे वाले सेक्शन के अंदर डालना है. You put it in the section and you get this trend line as well simultaneously. ठीक है, आपके पास ट्रेंड लाइन आ गई, ये आ गया. तीसरी चीज़, मैं प्रॉफिट वैल्यूज़ भी उठाना चाहता हूँ और प्रॉफिट वैल्यूज़ को मैं कहता हूँ कि ये राइट हैंड साइड में इस तरीके से आ जाए. ठीक है, और ये मैं मेरा बार बार आ रहा था. आई विल जस्ट रिमूव दिस एंड आई हैव अ डैशबोर्ड रेडी with me. Now अब what you need to do is go to your first this thing and then just click, यहाँ पर ना filter वाला बटन आएगा, just click on this filter. The moment that you click on this filter, what this interactivity tells you is that the moment that you are going to click anything, the numbers below is going to change. So based on what you are clicking here, things, the charts will change in this manner as well. Suppose मैं कहता हूँ मुझे tables देखनी है. Can you now see the moment that you pick on tables, it has only given you the profit trend of tables, which is telling me कि मेरा profit trend table का नीचे जा रहा है and मेरी profit कम हुई है. थिंक ऑफ इट कि आप इन्फ्लेशन का डेटा देख रहे हो या कंजम्पशन का डेटा देख रहे हो. कंजम्पशन के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ कंजम्पशन, या जीडीपी का डेटा देख रहे हो जिसमें कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स हैं, एंड यू हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट. तो आपने कंजम्पशन पे क्लिक करा और आपको कंजम्पशन का डेटा आपको बस वो उसके अंदर मिल गया. सो दिस इज वेयर द इंटरैक्टिविटी बिकम्स रियली ब्यूटिफुल इन टर्म्स ऑफ कि आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करोगे तो यू कैन गेट द ट्रेंड्स एंड वैल्यूज फॉर दिस. टेक 2-3 minutes, try to build this particular table. Then we'll build another table. As say profit over time. I will just show you. आप उस पे जाओगे, where is my this thing? तरीके से लेजेंड आ रहा था मेरे पास. अब आपने इस पे यहाँ पर ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक, यहाँ पर क्रॉस आएगा, जैसे पहले लेजेंड पे जाओगे यहाँ पर क्रॉस आएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट, योर लेजेंड विल गो एंड वापस लेके आना है. यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको लेजेंड वगैरह की. So it's just wait, where was this? Show toolbar, legend, हाँ ये रहा. यहाँ से you can just pick up legends again. You can check it for other things as well. Check it for appliances, you can check it for supplies, phones.
also be sharing these particular files, and all I mean the economic files as well, as these training videos, ये जो वाले training videos on the inter college coordination group. So I think some of you are part of that, the WhatsApp group of Eco Honors for 26 batch, 27 batch. So just in case if you're not there, you can just ping me and I'll add you there. So I'm going to share these resources. All right folks, let's move forward. Okay, अब हम एक और डैशबोर्ड बनाएंगे. डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले अगेन you select this, you go to from fixed size to automatic, and in automatic you need to select geospatial data. Now what we will do is we will put our profit trends, sales profit mix. This is what we will put, and we will also put up our profit across states. No, this is not where I wanted it to be. I wanted profit across states to be down there, and I want my profit across cities to be on the right. Okay, so we have this there. Now the moment that we have this there, we can now add, I used to have profit as a filter here. This profit apply to only this worksheet. It and remove this, and now again just select this and now select this as filter. The moment that you select this as filter, you can see now, if you see just for any particular category, you can see a geospatial map for that particular category. Just check this out guys, try to make this data now. Till then I'm just going to solve a particular issue. Try it guys. Show you a filter, but somehow that filter is not coming. It's okay, probably show it in some other thing.
Done, guys? Done? Yes, no, yes, no, yes, no. Great. Now what we are going to do is we are going to make kind of a presentation, a PPT presentation out of this. Now how we are going to do that is in form of a storyboard. Now if you see the last this particular, you can add a story from here as well, but if you see the last book that comes is the story, and when you see a story, again the size of this particular story, you just click on this and this particular story from fixed size to just drag to automatic. Okay. Now what we are going to do is we are going to add captions to this particular story book, and it gives you an insight into various things. So what we are going to do is we are going to first drag and drop a particular, first of all let's rename this dashboard. Before it's too late, we will just put it as geo data. Okay. Now what we are going to do is we can add our sheets to this, we can add captions to this, we can add dashboards to this, so we can add a whole lot of stuff on the canvas here. Now what we are going to do is we are going to add, say, our sales mix that we had, this only the sales data. I'm going to drag it here, and we are going to just say, we are going to put a title to this, and we are going to say that what is that we have found here. We found what we have found is that tables, say, I'm just giving you an example, tables has the fourth largest sales. I've just given one this thing to you. Now what you need to do is you need to you need to create a new story point here. Now how do you create a new story point, which is the second view? You have a new story point. Now just click on this blank and you have another story point here, and what you can do is you can add you can add this profit and sales mix, and you can then name this, and you can say that that tables incur losses. Okay, this is maybe a second point that you're trying to drive. I'll give you time to build your story. Then pick up a third one and get your, say, dashboard. You can see these are sheets and these are your dashboards. Pick up your dashboard and put it here, and you can then click this and show that tables show a negative trend. And then you add another blank sheet, and then you just put the city wise data, and then you can perhaps say this, that maybe the best city that you might have is something like Los Angeles. Los Angeles is the best if you want to emulate something in, no, if I want to emulate something in tables, then probably Seattle is the state, which Seattle is the city in Washington, which is perhaps what we need to see. This is the best possible city for tables. So best city for tables is Seattle.
now if you click on this screen slideshow thing, and if you see this, you can see the first, and you click on this, you get this. Maybe you can click on this, and then you can now simultaneously see all the stories for all the other things as well. And now you can also see this and observe. So this is how you can link multiple sheets together to form a presentation. And ultimately what you can do is you can upload this presentation on a public Tableau platform, and anyone in the world can see your work there through this story building. So this is the most exciting part of this particular project, that if you put it, but remember that anything that you are putting it out in Tableau public becomes available to everyone in the world. So उससे क्या होता है कि आपका डेटा, सो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ नहीं करना है, बट इफ देर इज अ पब्लिक डेटा, इफ देर इज समथिंग दैट यू हैव पिक्ड अप ऑन से गिटहब पे आपने कुछ डेटा लिया है, या फिर किसी और सोर्स से आपने कोई डेटा उठाया है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो. सो I mean try your hands with this particular way. Is this clear? Try to do this, guys. I'll give you 4-5 minutes. Try to build your own storyboard. If you escape, आपका वापस आ जाओ. Try to build your own storyboard, guys. After this I'm going to show you something called as stage views, and stage views को एक से एक link कैसे कर सकते हैं. It's an extension of what we are doing. So just advanced, I would say advanced dashboards थोड़ा सा हो जाता है. ये तो simple dashboards हैं. Done, guys.
done it till this point. Yashashvi, let's move on. Anyone else? Alright, good. We are good to go then. Alright, now what we are going to build is we are going to build some stage views. एंड अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब एक पर्टिकुलर स्टेट को क्लिक करूँ, व्हाट आई वांट इज, मैं अभी तो आपने देखा कि मैं सेल्स को देखता हूँ तो मुझे वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट व्हाट आई ऑल्सो वांट इज कि आई वांट टू सी द ऑपोजिट. सपोज मैं कहता हूँ I want to see data according to my I want to see a deeper dive into say just the state of Washington. मैं कहता हूँ मुझे वॉशिंगटन के स्टेट के साथ में डीपर डाइव चाहिए अंदर कि क्या क्या चल रहा है. सो व्हाट डू आई डू फॉर दैट. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ स्टेज. मैं एक प्राइमरी डैशबोर्ड, मैं बेसिकली 3 डैशबोर्ड्स लिंक करना चाह रहा हूँ एक दूसरे से. सो जस्ट लाइक स्टोरीज आई एम ट्राइंग टू लिंक डैशबोर्ड्स, एंड उन डैशबोर्ड्स के विद इन दोज डैशबोर्ड्स आई एम ट्राइंग टू ऐड सम काइंड ऑफ इंटरएक्टिविटी. नाउ लेट्स सी हाउ टू बिल्ड दैट. तो एक मेरा प्राइमरी डैशबोर्ड होगा, एक मेरा सेकेंडरी डैशबोर्ड होगा, एक मेरा टर्शरी डैशबोर्ड होगा. बट प्राइमरी डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा, प्राइमरी डैशबोर्ड के अंदर लेट्स पुट दिस, शूमी पे जाओ एंड मैं कहता हूँ स्टेट एंड सेल्स, कंट्रोल सेल्स एंड दिस मैप. आई वांट दिस मैप दैट इज देयर. मेरे पास सेल्स और इसका मेरे पास डेटा आ गया. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये स्टेट नहीं पता, बहुत लोगों को ये स्टेट नहीं पता. तो व्हाट यू कैन डू इज स्टेट को फिर से उठाओ और डिटेल में जाकर डाल दो. स्टेट में जाओ एंड पुट इट ऑन द मार्क्स, इस वाले. See, now you have all these names also given so that you know कि किस स्टेट के बारे में क्या बात हो रही है. और you all also have the sales color coding. अभी क्योंकि हमने अभी सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही है, so that really does not matter. अभी जो इनिशियल कलर चल रहा है वो आपको रहने दो. And we rename this as say state sales. ये स्टेट सेल्स करके हमने एक टैब बना लिया, एक व्यू बना लिया. दिस इज वन व्यू दैट वी हैव. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज व्यूज टुगेदर टू मेक वन डैशबोर्ड. फिर एक डैशबोर्ड को दूसरे डैशबोर्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बोलूँगा और उससे दूसरे डैशबोर्ड से मैं वापस एक बैक बटन बनाऊंगा जो फर्स्ट डैशबोर्ड में वापस चला जाएगा. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इंटरएक्टिविटी बिटवीन डैशबोर्ड्स. ठीक है. सो पहले तो ये करो, just do this, very simple, should take you hardly 1 minute. What we need to do is we need another view to this.
आई वॉन्ट से सेल्स टू कॉलम में डाल देता हूँ, एंड मैं सब कैटेगरी के साथ में इन स्टेट्स के अंदर सेल्स देखना चाहता हूँ। एंड टिपिकली हम इसको हमेशा उसके अंदर देखना चाहते हैं ना, वी वॉन्ट टू सी दिस इन असेंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक तो तरीका है कि मैं ये कर दूँ, बट अगर ये कर दूंगा तो मैं किसी भी स्टेट को क्लिक करूँगा। सी व्हाट आई वांट इज कि मैं ओक्लाहोमा को क्लिक करूँ, तो ओक्लाहोमा के अंदर जितने भी मेरे पास सेल्स सब कैटेगरीज ऑफ सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे बार बार ये करना पड़ेगा, बार बार इसको क्लिक करना पड़ेगा। इंस्टेड व्हाट आई डू इज यहाँ पर इसको राइट क्लिक इसको क्लिक करो, and then try to find in this, you need to find sort. Where is sort? Is there a sort here? Format some. नॉट सेल्स, इसको सब कैटेगरी को जाओ, एंड क्योंकि हम सब कैटेगरी को सॉर्ट करना चाहते हैं, सेल्स को नहीं, सॉर्ट करो। एंड जब आप सॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा किसके उसमें करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग। मैंने कहा कि मुझे करना है डिसेंडिंग के अंदर, एंड आई वांट इट टू बी इन टर्म्स ऑफ फील्ड। ठीक है, इसको फील्ड सेलेक्ट कर लेना, वो अपने आप अपना फील्ड लेगा और उसके हिसाब से वो आपको सेल्स के सम को डिसेंडिंग ऑर्डर, यू कैन ऑल्सो अगर कोई और नंबर होगा तो उसको भी कर सकते हो, बट यहाँ पर क्योंकि अभी हमने सेल्स ही लिया और सिर्फ सम ही लिया है तो सिर्फ सम को करेगा। एंड देन जस्ट क्लिक दिस। नाउ एवरी टाइम, एंड पुट लेबल्स टू दिस एज वेल, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू मेक अ व्यू, जब भी आप किसी स्टेट को सेलेक्ट करोगे तो वो अपने आप या ऑर्डर्ड तरीके से आपको इसका व्यू हमेशा इसी तरीके से देगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट ट्राई टू। एंड यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर ना नंबर भी आपके पास साथ में ही लिखा हुआ आ गया अब आपके पास कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, वो उसके आगे लिखा हुआ भी आ गया। डू दिस गाइस। Done? Great. Now what we can now do is we are going to create something called as trend line with forecast. अब मैं क्या चाह रहा हूँ, I want to create another view. By the way, name this as sales, say mix 2. I think last में मैंने यही डाला था, sales mix 2. This is sales mix 2. Now create your third view. Your third view is आप sales को डालो रो के अंदर। ठीक है, ऑर्डर डेट
and choose monthly number. This is your monthly sales. Now what you can also do is, अब हमें इसको यहाँ तक तो आपको वैसे ही क्लियर होना चाहिए था, अब इसको मुझे आगे के लिए फोरकास्ट करना है. फॉर दैट यहाँ पर एनालिटिक्स आता है. एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पर आपको ये एरो के साथ मिलेगा फोरकास्ट. क्लिक ऑन दिस फोरकास्ट. एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस फोरकास्ट यू विल सी कि आपके पास एक और वो आ गया. you have got this thing कि you have कि आगे वाले months के लिए you have got a forecast and you also have some kind of a confidence interval for that particular forecast. So this is actual and उसके बाद estimate, and estimate के साथ में there is a confidence interval with which it has given you some kind of forecast. So and for some states you might see कि ये forecast नहीं भी available होगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई स्टेट्स के अंदर इतनी आपके पास डेटा ही नहीं होगा कि उसका फोरकास्ट अवेलेबल हो. तो डोंट गेट वरीड बाय दैट. एंड व्हाट यू ऑल्सो नीड टू डू इज ऐड ट्रेंड लाइन्स. एंड द मोमेंट दैट यू सी ट्रेंड लाइन्स, कैन यू सी देयर आर टू डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स. ये अभी तक हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आपकी ट्रेंड लाइन है और ये फ्यूचर डेटा के ऊपर ट्रेंड लाइन है. सो इट शोज यू द फ्यूचर मे बी ऑगर्स वेल फॉर माई सेल्स डिपेंड गिवन माई the kind of trend line that I have. So this is again something that we can use in coming this thing as well. Try to make this, guys. Try to make this. Rename this as sales trend. Sales trend. Now I am going to build something very innocuous. बेसिकली मुझे एक डैशबोर्ड से दूसरे डैशबोर्ड में जाना है. अब यहाँ पर कोई बटन नहीं है जो बेसिकली मुझे बता दे कि बैक टू द प्रीवियस डैशबोर्ड. सो यू हैव टू मैनुअली हार्ड कोड अ काइंड ऑफ अ बटन. तो वो हार्ड कोड कैसे करोगे? यू नीड टू बेसिकली क्लिक दिस एंड क्रिएट अ न्यू पैरामीटर. हमें एक न्यू फील्ड बनानी है हमें उस बैक बटन की. Now what we need to do is click on यहाँ पर एक वो आएगा. I'll give you the steps. यहाँ पर or try to do it simultaneously. Just click on this and create a calculated field. मैंने आपको सिखाया नहीं है calculated field, but ये बहुत ज़रूरी होगा calculated field. And just write, इसका नाम दे दो back, and यहाँ पर भी डबल कोट्स में इसका नाम दे दो back. ठीक है. एंड वो नीचे बोल देगा कैलकुलेशन इज वैलिड. इसको ओके कर दो. द मोमेंट दैट यू डू दिस, यहाँ पर बैक करके एक आपके पास ये आ गया, क्या कहते हैं, टेक्स्ट वैल्यू के साथ एक कोई चीज़ आ गई. नाउ यू नीड टू ब्रिंग दिस बैक एंड ब्रिंग इट टू द टेक्स्ट.
यहाँ पर एक बैक लिखा हुआ आ जाएगा। नाउ पॉइंट इज मुझे बैक लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए से इसकी जगह पे मुझे शेप चाहिए। सो सपोज मैं कहता हूँ मुझे शेप चाहिए, और शेप जो चाहिए वो मुझे शेप चाहिए। तो यू कैन देखो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कहा, ऑटोमेटिक की जगह मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर चाहिए शेप, ठीक है, मुझे बैक एरो चाहिए, तो मैंने शेप करा, अभी वो सर्कल आ गया, तो मैंने ये जो बैक टेक्स्ट में लिखा हुआ ना इसको उठा के मैंने शेप के ऊपर डाल दिया, तो सिर्फ शेप आ गया मेरे पास। नाउ आई एम गोइंग टू एडिट दिस शेप, एंड एडिट कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड एडिट शेप करूँगा। हेयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ शेप्स। अब ये बैक का शेप ऐसा तो होता नहीं है, सो मे बी यू कैन देन ट्राई एंड सी डिफरेंट थिंग्स, मे बी एरोज परहैप्स, एंड किसी भी तरीके का एरो, जैसे ये वाला एरो लिया जो मैंने अपने उसमें भी लिया, एंड इसको ओके कर दो। एरोज, सॉरी आपको ये भी सिलेक्ट करना था, एंड दिस आपको इसको भी सिलेक्ट करना था, एंड ओके। अब यहाँ पर आपके पास एक एरो बन के आ गया है ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि ये थोड़ा एरो जो है वो थोड़ा छोटा है, एंड अगर आप देखोगे तो इस एरो पे क्लिक करके आपके पास बैक लिखा हुआ आ रहा है, जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड व्हाट आई डू इज यहाँ पर मैं टूल टिप पे जाता हूँ, और इसको इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इसकी जगह पे कुछ लिखा होना चाहिए कि क्लिक हेयर से क्लिक हेयर टू गो टू मेन मेन्यू, ठीक है, इसको आप लिख दो। एंड यहाँ पर इंक्लूड कमांड बटन्स को, रिमेंबर दिस, इंक्लूड कमांड बटन्स को चेकआउट कर दो। आई टेल यू कि क्यों कर रहे हैं, अभी पहले ओके करके देखो। नाउ द मोमेंट दैट यू सी दिस, आपके पास अब लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर टू डू दिस, पर जब आप ये क्लिक करते हो तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप वापस टूल टिप पे जाओ एंड जस्ट डू दिस, ठीक है। सो दिस विल इंश्योर कि अगर आप इस पर क्लिक भी करते हो तो कुछ और नहीं होगा, सिर्फ एक क्लिक का ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड। अपना एक क्लिक बटन चाहिए था मुझे, एक बैक बटन चाहिए था। आई विल शो यू कि ये बैक बटन आगे जाके यूज कहाँ पर आएगा, बट आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ बैक बटन। आई विल गिव यू दी स्टेप्स अगेन साइमल्टेनियसली, साथ साथ आप कर सकते हो, ठीक है। आई विल रिमूव एवरीथिंग, देखो मैंने पूरी क्लीन कर दी शीट। व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाई, उसका नाम दिया बैक, और यहाँ पर इन्वर्टेड उसके अंदर मैंने लिख दिया बैक, एंड आई सेड back already exists, so sorry. So let me delete this. And show you table। यहाँ पर क्लिक किया, क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, इसका नाम दिया बैक, और इन्वर्टेड उसके अंदर मैंने बैक लिख दिया, दैट व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है। कैलकुलेशन इज वैलिड, आई सेड ओके। तो मेरे पास एक नेम आ गया जिसके अंदर बैक लिखा हुआ है, और उसको आप जैसे टेक्स्ट पे लेके आओगे तो यहाँ पर बैक लिखा हुआ आ जाएगा। अब या तो है कि मैं इस बैक, अब ये इंट्यूटिव थोड़ा है कि किसी चीज़ पे जब आप बैक, जैसे ये वाला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि बैक जाने है, ठीक है। अंडू इसका मतलब है, तो उसको मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये ऐसा बटन है जिसको क्लिक करूँ तो मेरा पिछला वाला व्यू आ जाए, ठीक है। मैं एक व्यू से दूसरे व्यू पे आना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं हार्ड कोड करके एक टॉगल क्रिएट कर रहा हूँ।
एंड नाउ व्हाट आई डू इज, मैं इसके ऊपर पहली बात तो ये क्लिक करूंगा तो ये अजीब अजीब सी चीज़ें होंगी. सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई डू इज दैट मैं इसका वो ही चेंज कर देता हूँ. आई चेंज इट्स लेवल. मैं इसकी जगह पर चाहता हूँ कि शेप हो ये. ठीक है, अब ये शेप है तो पहले सर्कल हो गया और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे ये टेक्स्ट भी नहीं चाहिए तो मैं टेक्स्ट को उठाया और मैंने इसको शेप पे डाल दिया. तो मेरे पास एक बैक नाम का मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया है, एक मेरे पास शेप आ गया विच इज सर्कल. बट सर्कल इज़ नॉट बैक. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट शेप करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, नीचे जाऊँगा, वट एवर यू फील गुड अबाउट. एरोज इज समथिंग दैट आई फील गुड अबाउट. तो मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट करा, यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी आ गया एंड आई सेड ओके और मेरे पास ये बैक का बटन आ गया. बट बैक का बटन जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो देखो क्या लिखा हुआ रहा है, बैक. अब ये मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या है. तो मैं क्या करता हूँ कि इसको आई विल चेंज इट्स नेम. एंड हाउ विल आई चेंज इट्स नेम, ये टूल है, हॉवरिंग वाली टूल है, तो ये टूल टिप मिल जाएगी. तो टूल टिप में जाओ और टूल टिप में इसकी जगह लिख दो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, दैट you want to write that go back to the original menu or say click here to go to main menu. मैंने एक बेसिकली एक कस्टमाइज करके बताया है और यहाँ इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है. जैसे ही मैं इस बटन पे जाता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर टू गो टू मेन मेन्यू. बट जब आप इसको दबाओगे तो गलती से दबाओगे तो यहाँ पर आपको एक्सक्लूड और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. आई डोंट वांट ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस एज वेल. सो व्हाट आई डू इज गो टू टूल टिप एंड इंक्लूड कमांड बटन्स को मैंने अनचेक कर दिया एंड देन जस्ट आई से ओके एंड मेरे पास यहाँ पर अपना एक बैक बटन बन गया. क्रिएट दिस बैक बटन गाइस. आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ दिस बैक बटन और उसका नाम डाल दो बैक. बस अब हमारा व्यू बनने ही वाला है, हमारा पूरा डैशबोर्ड्स बनने वाले हैं एंड वी विल इमर्ज विद समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. There are I would also say that there are a few things that I have not covered. ठीक है, maybe जैसे I have taken 4 hours, 2 hours yesterday, 2 hours today, maybe 4 more hours, and 4 more hours you will be a pro in Tableau. You'll know 80% of what Tableau is. But it would require 4 to 5 more hours. So it's a 10 to 15 hour basically software, and it gives you mastery over a lot of visualization things. And you can use this, or you can use, once you use this you can also use Power BI as well. तो मतलब दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो. मुझे नेटिवली ये पसंद है. I've learned this and I mean it was good. प्लस Salesforce का है तो यूज इन अ लॉट ऑफ सेल्स वाला एंड मार्केट के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है. Done guys. Okay, we are moving forward now. Last 10-15 minutes. Okay, now what you need to do is we are going to create a last report, which is we are going to call as detailed report. And detailed report के अंदर what we are going to do is we are going to have, say you can put states in rows
subcategories, states and subcategories आपकी हो गई, and then put up maybe your order dates here, and then add things like your sales to this. sales आप सीधा drag करके यहाँ ले आओ. Then you add things like your सेल कितनी हुई है, क्वांटिटी कितनी हुई है, जस्ट पुट इट अक्रॉस. तो सेल एंड क्वांटिटी आ गई. अगर आपको जो चीज़ ऊपर नीचे चाहिए यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से भी आप कर सकते हो. तो सपोज आपको सबसे पहले सेल्स चाहिए तो आप इस क्वांटिटी को उठा के नीचे ले आओ, तो आपकी क्वांटिटी बाद में आ जाएगी, सेल्स पहले आ जाएगी. सो समथिंग लाइक दिस इफ़ यू वांट. then I also want say count of my orders. so यहाँ order count है, ये भी मैं यहाँ ले आता हूँ. तो मेरे पास ऑर्डर काउंट भी हो गया. एंड मैं चाह रहा हूँ कि आई ऑल्सो गेट से प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट भी आई कैन जस्ट पिक एंड ड्रॉप इट हेयर. तो मेरे पास ये सारे मेजर्स हैं, बट ये सारे मेजर्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं. मुझे क्या चाहिए, मुझे इस मेजर को उठा के यहाँ कर दो. नाउ व्हाट आई हैव इज, मेरे पास हर स्टेट की हर कैटेगरी का हर ईयर का मेरे पास सेल्स क्वांटिटी एंड ये आपके पास कितने आइटम सेल हुए और प्रॉफिट हुए. बट ये इतना बड़ा जो डेटा मैंने डेटा सेट बनाया है, बट एक्चुअली होगा नहीं, ये इतना सारा डेटा यूज़ नहीं होगा. व्हाट विल हैपन इज, जब मैं किसी स्टेट को सेलेक्ट करूंगा तो उस स्टेट का ही वहां पर सारी की सारी चीज़ें, जैसे मैंने वॉशिंगटन सेलेक्ट करा तो ये वॉशिंगटन का स्टेट मिक्स देगा, सेल्स मिक्स देगा. ये वॉशिंगटन का मेरे पास क्या कहते हैं सेल्स का ट्रेंड देगा. ये बैक बटन मुझे वापस ले जाएगा, और ये एक और टैब है, मुझे सिर्फ वॉशिंगटन का इंफॉर्मेशन देगा. सो आई एम ट्राइंग टू लिंक ऑल दीज इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड देन ट्राई टू एनालाइज इट. बस अब ये हमारे पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई. जस्ट रीनेम दिस एज डिटेल्ड रिपोर्ट. डिटेल्ड रिपोर्ट इसको नाम दे दो. ऑल आई हैव डन इज कि मैंने यहाँ पर स्टेट और सब कैटेगरीज डाली. हर स्टेट उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स हैं. ईयर मैंने डाला कि ईयर को मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है. एंड उसके बाद ये जितने भी मेरे पास मेजर टर्म्स है मैंने उनको यहाँ ड्रॉप करना शुरू कर दिया, या यहाँ ड्रॉप करना, मेजर वैल्यूज़ को ड्रॉप करना शुरू कर दो, एक ही बात है. एंड मैंने उनको क्या कहते हैं, आई हैव जस्ट पुट इट अक्रॉस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट वेयर बाय मेरे ईयर्स पहले हैं एंड देन उसके बाद मेरे पास सेल्स एंड ये सारी चीज़ें हैं. सो जस्ट डू दिस. दिस इज परहैप्स द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. उसके बाद तो आवर वर्क बिकम्स वेरी वेरी ईजी. Just you have to use five more minutes and we are done. Now go to a dashboard. Open a dashboard. Simple dashboard के अंदर फिक्स है ऑटोमेटिक करते के साथ ही अब जो हमारे पास सबसे पहले स्टेट सेल्स आया था, इसको यहाँ पर ड्रैग कर दो, ठीक है. एंड यू कैन रिमूव योर दिस थिंग, सेल्स वाला ये आप हटा सकते हो. एंड yeah, that's it. And just rename this as your primary dashboard. Okay. Rename this as your primary, right? Because through this you are going to deal with others. And then make another dashboard, your second dashboard.
story. This I want another dashboard. इस डैशबोर्ड के अंदर फिक्स से इसको ऑटोमेटिक कर दो, एंड ऑटोमेटिक करके व्हाट यू नीड टू डू इज से I want a dashboard whereby I have my sales and I have my, तो यहाँ देखोगे sales mix 2, ये मैंने डाला, and I also want my sales का trend नीचे, ठीक है. I want these two things that is there, and plus I want this as my, what I want is wait, I also want this as my, wait, this, just click on this, and यहाँ पर आपको ना फ्लोटिंग का ऑप्शन मिलेगा, फ्लोटिंग, एंड इस फ्लोटिंग को आप उठा के यहाँ ला सकते हो, एंड उसके बाद इसमें से इसका टाइटल हटा सकते हो, तो दिस बिकम्स मच मोर ईजियर टू सी, ठीक है. ये आपके पास यहाँ पर एक्चुअल और एस्टिमेट यहाँ पर आ गया. अब व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, अब आपका ये जो बैक वाला जो बटन था इसको भी हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, एंड you can then do, let it be like this, ठीक है, let it be like this, and we have just selected this. So just click, just make this particular view and rename this as secondary. Secondary view. Complete this, guys.
all now what we need to do is, see what I have done is, यहाँ से I have created, यहाँ से अभी तो हमने टाइल्ड वाली चीज़ें करी थी ना, let me just remove all of this. अब आई वॉन्ट टू ऐड ऑन दिस, मैं इस वाले डैशबोर्ड पे आ गया. इस डैशबोर्ड से मुझे कोई चीज़ क्लिक करके दूसरे डैशबोर्ड पे आना है. ठीक है, तो पहले तो मुझे यहाँ से कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं दूसरे डैशबोर्ड पे आऊँ, ऑटोमेटिकली इस वाले डैशबोर्ड पे आऊँ, और इस डैशबोर्ड से मुझे प्रीवियस वाले डैशबोर्ड पे जाना है. तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर चाहिए एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट. टाइल करूँगा तो टाइल का मतलब होता है, अगर आप टाइल ऐसे करके ले आओगे तो देखो ये इस तरीके से आ जाएगा. ये छोटा हो गया, ये पूरी की पूरी टाइल आ गई. तो इंस्टेड ऑफ दिस, क्लिक ऑन दिस फ्लोटिंग एंड ड्रैग दिस एंड टेक दिस बैक, और इस बैक को यहाँ पर कहीं पर फ्लोट करा दो. ठीक है, द मोमेंट दैट यू हैव दिस, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया. अब इस बैक का, ये दो जगह बैक आ गया. ऑल यू नीड टू डू इज, ये आपके पास बैक आ गया. एंड नाउ व्हाट यू डू इज, इसका टाइटल हटाया, एंड टाइटल हटा के यहाँ पर इसको थोड़ा सा व्हाट इज हैपनिंग, यस, ये आपके पास आ गया बैक. एंड floating and I created a back here. ठीक है, अब इस बैक के साथ में I said I don't want the title and I want this to have fit and fit entire view. अब ये इतना बड़ा है, इसको आप छोटा कर दो. ठीक है, जितना छोटा आपको करना है. and then put this back button somewhere here. ठीक है, so if you go to the secondary, आपको यहाँ पर एक बैक बटन मिल जाएगा which is there, and जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो वो आपको क्लिक टू मेन मेन्यू पे ले जाएगा. ये पता नहीं कहाँ से this is coming. हाँ, ठीक है, so this is the back button that you need to create. Just add this back button and rename this as, जैसे मैंने पिछले वाले में करा था, सेकेंडरी डैशबोर्ड. एंड द थर्ड डैशबोर्ड दैट यू नीड टू क्रिएट, अगेन ऑटोमेटिक, फिक्स्ड ऑटोमेटिक. एंड इन दिस अगेन मेक श्योर दैट यू हैव द डिटेल्ड रिपोर्ट. ये डिटेल्ड रिपोर्ट थी, जस्ट ऐड दिस डिटेल्ड रिपोर्ट हेयर. बट अब देखो क्या हो, व्हाट हैज हैपेंड. The moment that you have done this, the issue is क्योंकि आप फ्लोटिंग पे चल रहे हो, so इसलिए आपको फ्लोटिंग नहीं करना है. यहाँ पर आपको टाइल्ड पे सेलेक्ट करना है एंड डिटेल्ड को आप सेलेक्ट कर लो. यहाँ पर आपके पास डिटेल्ड में सारी इंफॉर्मेशन आ गई. एंड देन क्लिक ऑन फ्लोटिंग, जस्ट पिक अप दिस बैक, पुट इट हेयर एंड डू द सेम थिंग. जस्ट डू द सेम थिंग. बैक, ये आपको चाहिए फिट. पहले तो इसका टाइटल हटाओ, टाइटल हटाने के बाद इसको करो आप फिट एंटायर व्यू, एंड देन इसको छोटा कर दो एंड जस्ट ड्रैग इट wherever you want it. ठीक है, and here is your back button ready. ये बार क्यों आ रहा है, I have no idea. Now you have your third dashboard ready, which is the detailed view. Rename it as detailed. Now the magic happens. Now what you need to do is you need to create these actions. You go to the primary dashboard, ठीक है, and यहाँ पर you have dashboard and आपको actions मिलेगा. अब ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है एक्शन के साथ में. You add an action, you say filter. जैसे आप फिल्टर करोगे तो कहेगा क्या चीज़ फिल्टर करनी है, उस एक्शन का नाम बता दो कि उस एक्शन का क्या नाम है. एंड आई एम सेइंग दैट योर दिस थिंग इज गो फ्रॉम
state to say go to second dashboard, say go to second dashboard, so that मुझे पता चले कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप प्राइमरी से जाओगे और किस में जाओगे, प्राइमरी से जाओगे और आप जा रहे हो सेकेंडरी की तरफ, ठीक है। एंड द मोमेंट, रुको रुको रुको, I'll repeat it again, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ तक क्लियर है, डिटेल तक हो गया, डिटेल के अंदर बैक तक ले आओ, लास्ट 5-7 मिनट्स गाइस। डिटेल तक इस समय बैक का बटन आपके पास हो जाना चाहिए, सेकेंडरी में और डिटेल में दोनों के पास आपके पास बैक का बटन होना चाहिए टू गो बैक। देन आई विल शो यू कि हम ए से बी पे जाएंगे, बी से इसको क्लिक करके वापस ए पे चले जाएंगे, ए से हम सी पे जाएंगे और सी से वापस सेलेक्ट करके बी पे चले जाएंगे, ए पे आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको? नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं प्राइमरी वाले उसके ऊपर गया, आई वांट टू द प्राइमरी शेल्फ, आई गो ऑन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आपको एक्शंस मिलेगा, वो कह रहा है कि क्या एक्शन लेना है। इट द एक्शन लेट्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, डैशबोर्ड एंड अदर वर्कशीट्स। तो थिंक ऑफ इट जैसे एक्सेल में एक शीट को मैं दूसरे शीट के साथ इंटरैक्ट करा सकता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर एक डैशबोर्ड को दूसरे डैशबोर्ड के साथ इंटरैक्ट करा रहा हूँ। नाउ इट इज टेलिंग मी कि क्या करना है। मैं कह रहा हूँ मुझे एक न्यू एक्शन, न्यू फिल्टर चाहिए। क्या फिल्टर चाहिए? मैं उस फिल्टर का पहले तो नाम, फिल्टर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दैट विल टेल यू कि वो फिल्टर कर क्या रहा है। सो आई से गो टू सेकेंड डैशबोर्ड, ये मैंने इसका नाम रखा और मैंने यहाँ पर मेन्यू ही इसको सेलेक्ट करके रखना। आई टेल यू कि मेन्यू क्या आएगा और उसके बाद कहाँ, सोर्स तो आपकी ये हो गई स्टेट सेल्स, प्राइमरी से आप किस पे जाओगे, आप सेकेंडरी पे जाओ, प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाओगे और सेकेंडरी के अंदर आपको ए से आप बी पे जा रहे हो, यहाँ पर आप मेन्यू सेलेक्ट करोगे, बट मेक श्योर कि ये बैक ना हो क्योंकि बैक का हमारे पास यहाँ पर अभी कोई यूज़ नहीं है। एंड देन क्लिक ओके। सी नाउ व्हाट हैज हैपेंड। अब आप जैसे ही वॉशिंगटन पे क्लिक करते हो, कैन यू सी कि यहाँ पर एक लिंक आ गया, गो टू सेकेंड डैशबोर्ड। यू गो टू सेकेंड डैशबोर्ड, देखो ये आपको वॉशिंगटन का डेटा दे रहा है सर। दिस इज ओनली फॉर वॉशिंगटन। These are the sales and forecast for Washington, by the way. Clear? Now, अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे वापस उस पे जाना है, ठीक है, मुझे B से A पे जाना है। Now what I need to do is, यहाँ पर मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे एक्शन चाहिए इस डैशबोर्ड से। और क्या एक्शन चाहिए? I want a filter and that filter should be go back to say main menu, ठीक है। और किस चीज़ से जाएगा ये जाएगा आपका बैक से, और बैक पे सेलेक्ट करने से, ठीक है। जब बैक पे आप सेलेक्ट करोगे तब बैक पे सेलेक्ट करने से जाएगा और सेकेंडरी के बजाय ये अब आपका वापस प्राइमरी पे चला जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू। ये आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा एंड यू क्लिक ऑन ओके एंड देन यू सी, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ये आपके पास वापस ले गया आपको। So now you have an interactivity between these states and that dashboard. जैसे ही क्लिक करोगे आपको पास वो सेकेंडरी डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये आपको सेकेंडरी डैशबोर्ड का उसने आपको दे दिया। These are the sales for this thing. These are the sales trend for Texas and these are the sales mix for कौन सी आइटम आपकी सेल हो रही है। And you click on this and you go back.
ये क्लियर हुआ? A to B, B to A. We have not yet done A to C and C to A. Done, guys. Check. I'm telling you again. Dashboard, actions. एक्शन पे मैंने सबसे पहले ये वाला एक्शन करा था, ये वाला एडिट करके दिखा देता हूँ क्या करा था. गो टू सेकंड डैशबोर्ड, उसका नाम दिया. प्राइमरी डैशबोर्ड से मेन्यू लिस्ट आ रही है, ठीक है, मेन्यू आएगी. जैसे वो क्लिक करते थे एक मेन्यू खुला. और सेकेंडरी पे मुझे लेके जाएगा. सेकेंडरी पे मुझे सेल्स मिक्स और ये ट्रेंड मुझे दिखाना है, क्योंकि बैक का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ में, स्टेट्स के साथ में. और मैंने इसको बस ओके करा हुआ है. एंड कीप द फिल्टर्ड वैल्यूज़, क्योंकि जिस चीज़ का फिल्टर लगाया उसी चीज़ की वैल्यूज़ दिखाएगा. एंड सेकेंड वाला क्या था? सेकेंड वाला जो था दैट वाज कि वो मुझे मेन पे वापस ले जा रहा है. बैक पे क्लिक करोगे, बैक पे सिलेक्ट करना है, मेन्यू नहीं चाहिए मुझे, सीधा जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो अपने आप ही हो जाना चाहिए. एंड इट विल टेक मी टू द टारगेट शीट विच इज़ माई प्राइमरी शीट. एंड ओके, दैट्स इट. हुआ कि नहीं हुआ? डन. वन मोर डन अगर आ जाएगा. ओके, नाउ लेट मी add another thing. Now I'm adding another action. Dashboard action. Now what action do I want? I want कि फिल्टर करो, एंड फिल्टर करके मुझे चाहिए प्राइमरी. गो टू, आई वॉन्ट प्राइमरी टू डिटेल्ड रिपोर्ट. डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए मुझे उस पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है. सो प्राइमरी में मेन्यू ऑप्शन देगा और मुझे वो डिटेल्ड वाले पे लेके जाएगा, ठीक है. और उसमें बैक अनचेक कर देना. एंड ओके. नाउ इफ़ यू सी कैलिफोर्निया, तो आपके पास डिटेल्ड रिपोर्ट भी आ रही है और गो टू सेकेंडरी डैशबोर्ड भी आ रहा है. डू आई वांट अ डिटेल्ड रिपोर्ट? यू गो टू डिटेल्ड रिपोर्ट. आपके पास सिर्फ कैलिफोर्निया का डिटेल्ड रिपोर्ट आ गया. बट वन थिंग इज लेफ्ट. व्हाट इज लेफ्ट? वन थिंग इज लेफ्ट गाइस. व्हाट इज लेफ्ट? We have done A to B, B to A. Back for detailed. Yes. और कुछ नहीं करना. यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाओ, एक्शन एंड ऐड फिल्टर बैक टू मेन 2. एंड ये डिटेल से जाएगा, सेलेक्ट होके जाएगा, ध्यान रखना सेलेक्ट होके जाएगा, ठीक है. एंड इट विल गो टू विच प्राइमरी वन एंड जस्ट ओके एंड वी आर बैक. This is how you can build different dashboards, guys. I hope this was, just check it out. आपको कई जगहों पे मिलेगा, किसी स्टेट का हो सकता है. आपके पास सेकेंडरी डैशबोर्ड पे जाओगे तो हो सकता है, जैसे इसमें फोरकास्ट ही नहीं है, इनफ डेटा नहीं है फोरकास्ट के लिए. सो यू माइट सी दिस फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट एज वेल. ठीक है, डन गाइस. I've already shared this file with you. You can use it, you can try it out. You can try it out with economic data as well. As I've told you, you
can always reach out to me. Your college is special to me. I'm a pass out of KMC myself, and we share a lot of common teachers. So you guys, anyways, hold a special place, and you can always ping me for any of your doubts. I think. Let me just drop in my details. These are my details. I think my system just blocked again. Wait. Meeting chat not responding. I think the Zoom has got stuck. But in any case, guys, if you can hear me, you can always reach out to me, and I'll be happy to take your doubts.